जी, लास्ट टाइम से रिलेटेड या कुछ इनफर्टिलिटी, सबफर्टिलिटी किसी चीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पहले वो कर लेते हैं। जी बताइए। मैम अगर सबसीरोजल फाइब्रॉइड है तो उसमें पिटिंग के रिलेटेड है तो वो हम मायोमेक्टोमी कहेंगे या रिमूवल ऑफ फाइब्रॉइड कहेंगे? क्या क्या कह रहे हो? सबसे रोजल है तो क्या होगा? आपकी आवाज कट गई थी। जी जी मैम। मैम फाइब्रॉइड है पेडिक्युलेटेड सबसीरोजल या पेडिकल नहीं भी है तो उसको हम मायोमेक्टोमी कहेंगे या रिमूवल ऑफ फाइब्रॉइड कहेंगे? मायोमेक्टोमी। मायोमेक्टोमी ही मायोमेक्टोमी का मतलब है रिमूवल ऑफ फाइब्रॉइड। मैम मेडिकली लेकिन इट इज कॉल्ड मायोमेक्टोमी। जी। अच्छा मैम अगर पेडिकली लाइगेट कर देते हैं तो भी इसको हम मायोमेक्टोमी ही कहेंगे? जी। मैम वो इसलिए हमारा क्वेश्चन था क्योंकि उसमें तो हम कैप्सूल नहीं ओपन कर रहे और इन्यूक्लिएशन नहीं कर रहे जैसे फाइब्रॉइड में करते हैं बस वो फाइब्रॉइड। मायोमेक्टोमी है। उसको ये कोई बात मायोमेक्टोमी। नहीं, कैप्सूल ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मायोमेक्टोमी इज रिमूवल ऑफ फाइब्रॉइड। मायोमा ठीक का रिमूवल इज मायोमेक्टोमी। ठीक है, कैप्सूल ओपन हो के रिमूव हो या पेडिकल से रिमूव हो, वो अगली सही। बात, वो उसका टर्मिनोलॉजी को चेंज करने से ताल्लुक नहीं ठीक है मैम। थैंक यू है। मैम। तुम जी हेरा। हम्म, मैडम मैंने वही बताना था कि मैंने प्रिपेयर किया हुआ है केस, अगर कोई नहीं करता तो। अगर कोई और वॉलंटियर है तो आप बता दें, वरना फिर डॉक्टर हेरा ही कर लेंगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी हेरा थी, इसलिए मैं कह रही हूँ अगर किसी और ने किया है तो पहले उनका देख लेते हैं। जी हेरा बताओ। अच्छा, क्या कोई केस आप लेके आए हो? कोई है केस या मैं आपको सिनेरियो दूं? मैडम केस भी है, अगर आपने देना तो आप दे आप दें। बताओ। नहीं नहीं, आप अपना बताओ। मैडम 32-year-old Nali Paris, married for 5 years, हम्म। presented with cyclical lower abdominal pain from last 6 months. हम्म। बस आगे। जी मैम। ठीक है, And वैल्यूएशन है राइट? how will you manage this case? ओके गुड, अच्छा केस है, चलो जी स्टार्ट करें। Yes, madam. First of all, I will introduce myself to the patient and take a brief introduction regarding her biodata. I will confirm the findings and ask some focus history question. I will ask her how long they are married for, what is the coitus frequency, and are they living together? Is there any problem with the sexual intercourse? And I will ask that is this first marriage in herself in her husband, and she has taken any test previously like ultrasound, husband semen analysis, or hysterosalpingography report. Then I will ask her about her cyclical lower abdominal pain. What is the duration, what is the onset, duration, intensity, character, radiation, aggravating and relieving factor related to this pain? Is this pain is related, what is the relationship of pain with the menstrual cycle? Is it aggravates with the menses, or it decreases with the menses, or how it is relieved? And I will also ask her about her dyspareunia. Is there any pain with the sexual intercourse? If the pain with sexual intercourse is present, then I will ask that it is superficial or deep dyspareunia. And is it affecting their daily coitus activity, and how it is relieved? Then I will ask my patient that is there any feeling of mass in lower abdomen or any pressure symptoms related to this mass, like right hypochondrium pain, shortness of breath, and any altered bladder or bowel habits or prominent vein in the legs. Then I will ask any history of weight loss or loss of appetite, any history of pervaginal discharge, fever, any history of high grade fever along with the tuberculous contact of any person, and night sweats, any history of abnormal uterine bleeding. Then I will ask her about any history of burning micturition, dysuria, urinary urgency frequency, any history of nausea, vomiting, and lack of digestion, or any GIT problem. Then I will ask my patient about her any history of hot flashes, night sweats, any history of acne, weight gain, hirsutism, any history of hot and cold intolerance or dye handling. Then I will proceed with the husband history. I will ask what is the age of husband, what is the occupation, any medical and surgical history in the husband, and any antipsychotic medication or radiation exposure, or is this first marriage of husband, and is there any problem with the sexual intercourse with the husband?
Then I will proceed with my patient's gynecological history. I will ask her about her last menstrual period, its regularity, and bleeding days, bleeding-free days, intermenstrual bleeding, postcoital bleeding, dysmenorrhea, dyspareunia, pap smear, and contraception. I will ask her, had she taken any ovulation induction for this purpose? And then I will ask her past family history, like any history of breast cancer, endometrial cancer, ovarian cancer, or cervical cancer, or colon cancer in herself or in her family. I will ask her any history of any past medical or surgical history, any cardiovascular problem, diabetes, hypertension, asthma, anemia in herself or in her family, or any past surgical history, any history of blood transfusion, any history of drug allergy, and what kind of treatment she has taken up till now, and what is the follow up, and what is the workup of this patient. Then show me all the investigations with date and time. Then I will proceed with the examination. After consent, I will check BMI of my patient. I will look for the signs of anemia in her nails, palms, conjunctiva, or tongue. I will take blood pressure, pulse, respiratory rate, and temperature of my patient. Look for thyroid smelling, any palpable lymph node, chest, breast, and cardiovascular examination will be done as per protocol. And I will look for the legs for any swelling, prominent veins. Then I will inspect the abdomen, in which I will look for any visible veins, pulsations, trias, scar marks, or hernias present. Or then I will also palpate the abdomen, in which I will do superficial and deep palpation. In deep palpation, I will look for any visuomegaly or any mass is present. If the mass is present, then I will look for its site, size, mobility, surface, margins, consistency, lower limit is reachable or not reachable, temperature, tenderness, and the skin is separable or not. Then I will also look for flanks for any ascites or any shifting dullness is present. I will ask my patient to empty the bladder, and I will inspect the vulva and vagina, and do sterile speculum examination, in which I will look for the general hygiene of cervix, and any bleeding or infection or discharge is present. Then I will also take pap smear if discharge is seen. I will proceed with the bimanual examination, in which I will look for the uterus size, mobility, uterus position, tenderness, and bilateral adnexas. If the adnexal fullness is present, then I will look for any mass is present. Is it palpable with the surrounding, or what is its relationship with the surrounding organs? What is the site, size, mobility, and margins and consistency of this mass? I will also palpate pouch of Douglas for any nodularity or any mass. Then after examination, I will proceed with the investigations. चलो गुड, एक In मिनट, सॉरी, बस बस यहाँ तक अभी हम बात करेंगे. सो बहुत सॉरी. सो इट वाज वेरी गुड, बड़ा अच्छा प्रिपेयर्ड है. और आई थिंक मे बी मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव कवर्ड. एक चीज वही बात कि थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट, और क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो गया काम. दूसरी जी चीज, हिस्ट्री वाज वेरी गुड. उसमें देखो, बात ये है कि आपने ये नहीं बोलना कि आई विल आस्क हर अबाउट एनी जीआईटी सिम्टम्स और एनी रिलेशन विद द साइकिल. चलो वो आपने थोड़ा एलैबोरेट कर दिया था कि साइकिल के आपने अपनी थ्योरी और अपने डीडी को पूरी सवालों से बताना है. जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको तो डिटेल में बोलो ना, ताकि बाकी चीजें बेशक नो नो करके बोल दो जल्दी जल्दी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस शुरू हो रहा है राइट फ्रॉम हिस्ट्री. और हिस्ट्री के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात ही पेन से रिलेटेड है. यूं नहीं बोलना कि पेन का आई विल आस्क हर अबाउट, ये आपको थ्योरी का जवाब थोड़ी सुना रहे हो कि मैं पेन के ऑनसेट और रेडिएशन और ये वो. आपने बोला है कि एंडोमेट्रियोसिस, वी डोंट नो एग्जैक्टली द डायग्नोसिस कि एंडोमेट्रियोसिस है या नहीं, लेकिन पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से ही हमें अंदाजा हो रहा है साइक्लिकल पेन एंड सबफर्टिलिटी के ज्यादा डायग्नोसिस जो है इट इज गोइंग टुवर्ड्स एंडोमेट्रियोसिस. तो आपकी हिस्ट्री ऐसी होनी चाहिए. ये नहीं, ये पोल के टाइम नहीं वेस्ट करना कि पेन के सारे फीचर्स 1 2 3 करके आप बोल दो. आप वो फीचर्स एलैबोरेट करके बोलो कि वेदर द पेन starts before the cycle or starts from the second day of the cycle and then it increases and goes away after the periods are over, and any radiation towards back, etc., etc., या any relation with the what is the posture. intensity of this pain? यस. आपने उसको कभी भी, और ये भी तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया की भी तो रूल आउट करो कि इफ द पेन इज देयर सिंस द स्टार्ट ऑफ मेनार्की और वो सारा Oh, कुछ ना. ठीक है, तो okay. आपने हिस्ट्री ली है किसी भी पेन की, आपने हिस्ट्री ले ली किसी भी सबफर्टिलिटी की. इट्स नॉट लाइक दैट.
आपको हिस्ट्री लेनी है। आपने इस तरह नहीं कि 1 2 3, जैसे कि मैथ्स है तो चलो जी मैथ्स से रिलेटेड प्रेशर सिम्टम है, पेशेंट को क्या पता प्रेशर सिम्टम क्या होता है। प्रेशर सिम्टम्स तो हमें पता है कि वो वेरिकोसिटीज बन सकती हैं या फीट पे एडीमा हो सकता है। तो आप किसी पेशेंट को बिठा के, चाहे किसी डॉक्टर को भी, डॉक्टर पेशेंट को भी बिठा के पूछोगे कि मैथ्स से रिलेटेड प्रेशर सिम्टम्स आपको हैं या नहीं, तो वो आपको कहेगा कि नहीं है। जब तक कि आप उसे ये Yes, नहीं पूछोगे कि पाँव पे कहीं मोटी वेसल्स तो नहीं बन जाती हैं, कहीं नीचे आपका स्वेलिंग्स तो नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दे आर द प्रेशर सिम्टम्स ऑफ द मैडम मैस। ठीक मुझे है। ना इस पॉइंट पे ये फील हुआ था कि अगर मैं अभी से ही जो है वो यूरिनरी एजेंसी फ्रीक्वेंसी का कह दूंगी प्रेशर सिम्टम से रिलेटेड, तो एग्जामिनर ये ना सोचे कि ये अभी से ही नॉन गायनेकोलॉजिकल कॉजेज पे आ गई है, पहले इसने गायनेकोलॉजिकल कॉजेज रूल आउट नहीं की, तो नहीं, इसलिए तो मैंने थोड़ा सा प्रेशर। नॉन गायनेकोलॉजिकल कॉजेज और नहीं, अगर मैस आपका लोअर एब्डोमेन में है, वेदर इट्स गायनेकोलॉजिकल और नॉन गायनेकोलॉजिकल, तो यूरिनरी सिम्टम्स हो सकते हैं, और सिमिलरली बावल के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। ठीक है। इफ यू हैव अ बिग फाइब्रॉइड इन द लोअर एब्डोमेन तो इट कैन कॉज यूरिनरी सिम्टम्स, जरूरी नहीं कि नॉन गायनेकोलॉजिकल, बल्कि ज्यादा तो गायनेकोलॉजिकली मैस होगा लोअर एब्डोमेन में। जी मैडम। एक्सक्यूज मी। ठीक है। तो इस तरीके जी से आपने वो नहीं करना। ठीक है। तो आपकी हिस्ट्री के पॉइंट्स आपने ठीक तैयार किए हुए हैं, लेकिन वो तो हर मरीज पे होंगे, लेकिन आपने इस पेशेंट की हिस्ट्री के हिसाब से नहीं बताया। सो जब भी जी आप यू स्टार्टेड वेल, बायोडेटा में कुछ बातें मिस हुई थी, वो भी इंपॉर्टेंट है। एक्सक्यूज मी। एलएमपी से स्टार्ट करके, और ऑब्वियसली वो आपने अच्छा कवर किया कि दे वर लिविंग टुगेदर, और फिर आपने उसके बाद फ्रीक्वेंसी का जिक्र जब एक दफा कर दिया कोर्टल इंटरकोर्स का, तो फिर आपने बार बार नहीं वो उसका दोहराते रहना, मतलब वो फिर फर्स्ट ही में हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आपने एक्सक्यूज मी, फिर आपने जब स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली इसमें फीमेल से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मसला स्टार्ट में फीमेल से ही है। तो आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल से ही स्टार्ट करना है, लेकिन आपने शायद स्टार्ट पेन से किया। इट्स नॉट लाइक दैट। आपने पहले, अब बिकॉज इट्स बिकॉज इसको साइक्लिकल पेन है, पेन इज विद एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आपने उसको फिर पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल से शुरू करोगे ना, कि साइकिल रेगुलर भी है या नहीं, और उसके बाद आप उसके पेन की रिलेशन के व्हाट एग्जैक्टली शी मीन्स विद द साइक्लिकल पेन, कि उसको किस टाइम पे होती है साइक्लिकल के, तो फिर आपको पीछे पड़ जाना चाहिए कि सेकेंड डे से शुरू होती है, कब से शुरू होती है एक्सेट्रा, या पहले से शुरू होती है, पीरियड से ठीक होती है, और क्या मिड साइकिल में भी होती है। जो एंडोमेट्रियोसिस के कई पेशेंट्स हैं उनको मिड साइकिल में भी बहुत सिवियर होती है। और फिर आपने इंटेंसिटी नहीं पूछी कि क्या उसे इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, क्या वो हर दफा हॉस्पिटलाइज होती है, और क्या वो मिनारकी से हर दफा she has to take leave from her वर्क प्लेस और फ्रॉम हर whatever स्कूल, और जो भी कि इतनी ज्यादा उसको सिंस मिनारकी पेन है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये चीजें आपने बहुत ज्यादा एलैबोरेट करनी थी, क्योंकि हमने डीडी बनाया साइक्लिकल पेन का नाम जब पेशेंट ने बोल दिया, तो उसमें तो फिर डीडी बन गया ना, पीआईडी, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, प्राइमरी डिस्मेनोरिया, ये सारा डीडी बना, लेकिन आपकी हिस्ट्री में ये डीडी नहीं था। सो इस वजह से वो हम्म। बिल्कुल वो अदरवाइज तो पॉइंट्स के हिसाब से तो वो ठीक थी, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं कि अगर आपने उसको इस पेशेंट के ऊपर अप्लाई करके नहीं किया। तो आपने जी मैडम। इसको इसके साइक्लिकल की चीज में साइकिल को बहुत इंपॉर्टेंस देनी थी। उसके बाद आके आपने जब ठीक है, बाकी चीजें आपने क्विकली रूल आउट कर ली, हस्बैंड की हिस्ट्री और वो सारा कुछ। बट फिर जब आपने ट्रीटमेंट की बात की तो आपने ट्रीटमेंट को बहुत कम इंपॉर्टेंस दी, आपने सिर्फ एक लफ्ज बोल दिया या एक लाइन बोल दी। आपने इसको थोड़ा एलेबोरेट करना था, क्योंकि अगर एक पेशेंट 6 महीने से, स्पेशली इफ शी हैज नोटिस दैट इट इज अ साइक्लिकल पेन, तो हो ही नहीं सकता कि वो साइकिल में पहले से उसकी ट्रीटमेंट ना लेती हो। तो आपने उस ट्रीटमेंट को तो एलेबोरेट ही नहीं किया कि इफ शी वाज ऑन हार्मोनल ट्रीटमेंट, ऑन व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, क्या उस ट्रीटमेंट से उसको आराम आता है या नहीं आता है, या एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो आपने उस चीज को वो नहीं किया। फिर जो मैथ्स के पीछे आप थोड़ा सा लगे, आई डोंट थिंक कि पेशेंट हैड एनी कंप्लेंट ऑफ मैस लोअर एब्डोमेन। तो आपने बहुत ज्यादा उसको, इतनी जितनी डिटेल में आप जाने की आपने कोशिश की, उसमें इतनी डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज पेशेंट को तो कोई कंप्लेंट नहीं थी। सेकेंडली ना आपको एग्जामिनेशन पे मैथ्स मिला, तो उसमें फिर इतना क्या डिटेल में बोलना कि प्रेशर सिम्टम्स और क्या नहीं।
पेशेंट तो आई है सब फर्टिलिटी और साइक्लिकल पेन के साथ, तो आपने उस चीज को पूरा पहले रूल आउट करना है, ठीक है। तो मैं एक समराइज इसको क्विकली हिस्ट्री को अगर आप करो तो यस बायोडेटा एंड देन इनिशियल सब फर्टिलिटी की हिस्ट्री, जैसे हम हमेशा कहते रहे पिछली क्लासेस में भी है कि वो इफ दे मैरिड देयर फर्स्ट मैरिज ऑफ द कपल, और फिर दे आर लिविंग टुगेदर, और क्वार्टल हिस्ट्री और वो सारा कुछ। उसके बाद आपने फिर इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या हुई, इन्वेस्टिगेशंस में आपने सबसे पहले हस्बैंड की रिपोर्ट का पूछा, फिर आपने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट का पूछा, और फिर आपने ट्यूबल पेटेंसी का पूछा पेशेंट से। उसके बाद पेशेंट इज हियर विद द कंप्लेंट ऑफ साइक्लिकल पेन, तो आपने साइकिल से स्टार्ट किया, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी पूरी डिटेल में पहले पूछी, किस तरह के उसके पीरियड्स, ब्लीडिंग पैटर्न एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उस ब्लीडिंग पैटर्न को आपने पेन से रिलेट किया, फिर आपने पेन का पूछा, पहले पेन के सारे फीचर्स के स्टार्ट कब से होती है, सेकेंड डे से होती है, ये शुरू से होती है, ये पहले से होना शुरू हो जाती है, और खत्म कैसे होती है और कब होती है। व्हाट शी एग्जैक्टली मीन्स विद द साइक्लिकल पेन, नंबर वन। नंबर टू, क्या वो मिड साइकिल में भी होती है, एंड इफ इट एक्चुअली इज अ साइक्लिकल पेन, तो क्या वो उसको सेंस मेनार्की है, और अगर वो वाकई पेन है तो क्या शी नीड्स टू टेक ऑफ फ्रॉम हर वर्क प्लेस फॉर 1 or 2 days इनिशियली, और व्हाट टाइप ऑफ एनाल्जेसिक्स शी नीड्स टू टेक फॉर दिस पेन, ठीक है, क्या वो वाकई में पेन है भी कि नहीं। उसके बाद बेशक आप पेन की उसकी रेडिएशन, रिलेशन विद द पोस्चर, यूरिनरी बाउल रिलेशन, पेन से रिलेटेड, नॉट मैस, मैंने मैस का जिक्र नहीं किया, यूटीआई और बाउल को रूल आउट करने के लिए, वो सारा करके फिर आप बेशक उसकी बाकी की इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री पूछ लोगे, और फिर ट्रीटमेंट टेकन अप टिल नाउ, या फिर जो भी उसको बताया गया अबाउट द पेन और वो सारा कुछ, और फिर आप फर्दर करोगे, और फिर इन्वेस्ट, और फिर एग्जामिनेशन वाज वेरी गुड जिस तरीके से आपने एग्जामिनेशन बोला, बिल्कुल उस तरह से, ठीक है। तो इस तरह करेंगे। चलो अभी तक कोई क्वेश्चन है, नहीं तो इन्वेस्टिगेशंस पे आते हैं। हम्म, ठीक है, चले। हीरा जी, इन्वेस्टिगेशंस आप क्या मांगोगे? Ma'am, investigations after baseline investigations and investigations of anesthesia fitness, I will ask for investigations for fertility, like her husband's semen analysis along with its pH, sperm count, motility, morphology, and progressive motility. I will ask for day 2 serum FSH level, LH level, prolactin level, day 21 serum progesterone level of 28-day cycle. And if thyroid is any symptomatic patient regarding thyroid, then thyroid investigation will also be asked. Then I will proceed with the ultrasound. In ultrasound abdomen, I will look for endometrial thickness, endometrial myometrial interface, and echogenicity or mass in the uterus, what is the site, size, and location of the mass. And then I will check for the adnexas. If adnexal masses are present, then what is it unilateral or bilateral? Is it unilocular or multilocular? Any papillary projections or septation is present in this mass, or solid component is present in the mass, any increase in vascularity of the mass, or I will also look for other of second size or other ovary for same features, and I will also check for the ascites or any abdominal mass, other abdominal mass. Then after this, I will ask for hysterosalpingography report if present. Then if the mass is having if the mass is present and it is having complex cystic nature, then I will also ask for CA-125 level, alpha fetoprotein, beta SCG, serum LDH level, and inhibin A and B levels. These are the investigations. एंड वाले आपने क्या बोले, एलडीएच इनहिबिन, ये क्या बोला आपने? मैडम अगर कम्प्लेक्स सिस्ट मिलती है मुझे तो फिर मैं वो ट्यूमर मार्कर सारे रूल आउट कर लूंगी। इनहिबिन कौन सा ट्यूमर मार्कर है? मैम वो ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर। इनहिबिन समथिंग, क्या फिर से बोलो, कौन सा ट्यूमर मार्कर बोला मैम आपने? इनहिबिन ए इनहिबिन ए एंड बी, हम्म, के लिए पूछा था। अच्छा देखो मेरी बात ग्रेनुलोसा सेल सुनो। ट्यूमर। अभी इससे पहले कि कोई और भी हमें मजीद ऐड करे इन्वेस्टिगेशंस, अभी हम सबकी भी कंट्रीब्यूशन अभी पूछते हैं। पहले तो मैं बोल दूं, एनेस्थीसिया फिटनेस इन्वेस्टिगेशंस कौन सी आपने मांगी है? क्या आपने कहा आफ्टर बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस एंड एनेस्थीसिया फिटनेस इन्वेस्टिगेशंस?
मैम उसमें चेस्ट एक्सरे है और वो है ईसीजी है और बाकी वो ये जो सारी इन्वेस्टिगेशंस आपने बोली, अगर इनकी आप कॉस्ट निकालो तो कोई मेरा ख्याल है 20 से 30 हजार तो सिर्फ एक सस्ती तरीन लैब में बनती है इसकी कॉस्ट। पेशेंट आपके पास आई है, उसके तो मियाँ की टोटल पे 15 हजार है। अब इसमें से सवाल ये पैदा हुआ कि ये जो आपने चेस्ट एक्सरे 32 ईयर ओल्ड में कराया था, और पता नहीं ईसीजी जो आपने कराई 32 ईयर ओल्ड में, और आई डोंट नो व्हाट नॉट, मतलब क्यों? आपका बड़ा अच्छा खासा मैडम चल आगे रहा था फायदा, मैनेजमेंट और में अब अगर आप ऐसा लेप्रो चल रहा है कि पास होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब ये तो खतरनाक डॉक्टर होने की निशानी हो गई ना। मतलब इतना खर्चा और इतना इतनी अननेसेसरी चीजें पेशेंट की, आपने क्या पता सर्जरी करनी ही नहीं है। मतलब अभी तो आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी नहीं मिली और कुछ भी नहीं मिला, पता ये चले कि वो 32 ईयर्स की है, साइक्लिकल उसको पेन है, और अल्ट्रासाउंड कम्स आउट टू बी नॉर्मल, और आप उसकी ईसीजी एक्सरे और पता नहीं क्या क्या करा के बैठे हुए हो, राइट? और आपने तो पता नहीं इनबिन ए बी पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गए हो, जो अदरवाइज है कॉम्प्लेक्स मैस इन 32 ईयर में आप नहीं कराओगे इन्वेस्टिगेशन, आपने तो वो भी करा डाली। मतलब ये तो बहुत ही अजीब, क्योंकि ये वो रिपोर्टें हैं नेबिन और एलडीएच और ट्यूमर मार्कर्स जो कि आपके सरकारी अस्पतालों में भी नहीं होंगे फ्री वाले, राइट? और ये तो एक एक रिपोर्ट तो पता नहीं जी कितने। मैम। सो नॉट लाइक दिस। आप आपने इस तरह नहीं बोलना, नहीं बोलना, जब तक कि आपका डायग्नोसिस क्लियर नहीं है एंड यू रियली नो दैट यू आर गोइंग टू गो फॉर अ सर्जरी। अगर कोई सर्जरी करनी भी होती है तो 32 ईयर में अब चेस्ट एक्सरे, आई डोंट नो, कहीं किसी हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल होता है कि वो चेस्ट एक्सरे कराते हैं 32 ईयर ओल्ड में, या वो ईसीजी क्यों कराएंगे यार 32 ईयर ओल्ड में, मुझे ये बता दो। सो ईसीजी तो सिर्फ क्रॉनिक हाइपरटेंसिव डायबिटिक और जिसमें वाकई हार्ट का सस्पेक्ट कर रहे हैं, या फिर मे बी इफ चीज मोर देन 45, चलो कुछ हॉस्पिटल्स में प्रोटोकॉल होता है, वरना और एक्सरे तो अब होता ही नहीं, तो इस तरह की चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी। दीज आर फ्यू थिंग्स जो हम कह के या लिख के दूसरे फील्ड वाले भी फिर हंसते हैं कि एनास्थीसिया फिटनेस से पहले आपने कराया होता है, एनास्थीसिया वाले भी हंसते हैं कि यार 32 ईयर में ईसीजी करा के पेशेंट आई हुई है, एक्सेट्रा। तो यही तो बात है कि दैट इज वाई यू आर डूइंग एफसीपीएस, ताकि आपको पता हो कि किस मरीज में वाकई किस चीज की जरूरत है। सो आपने बेसलाइन कराई, इट्स बेटर इन एग्जाम नॉट टू जस्ट से दैट आफ्टर बेसलाइन। बेसलाइन का मुझे नहीं, आप फटाफट बोलो कि मुझे ये चाहिए, राइट? क्यों? क्योंकि पेशेंट इज देयर विद पेन लोअर एब्डोमेन, व्हाट इफ इन यूरिन कंप्लीट इट कम्स टू बी आई यूटीआई, कम्स आउट टू बी यूटीआई, ठीक है? यस तो भी मैम। तो इम्पोर्टेंट है ना, हर चीज की इंपॉर्टेंस। एनेस्थीसिया फिटनेस की तो सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक कि आप अपने माइंड में एक क्लियर डायग्नोसिस लेके नहीं बैठे हुए, और उस डायग्नोसिस से रिलेटेड यू नो एग्जैक्टली दैट दिस पेशेंट नीड्स सर्जरी। सो ये तो इतना बड़ा ब्लंडर था कि बर्दाश्त नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद आपने जब इन्वेस्टिगेशन मांगी, यू फाइन दैट वाज गुड, के फिजिक एलएच सेकेंड डे आपने मांगा प्रोलैक्टिन, यू आस्क्ड फॉर टीएसएच, एंड देन यू आस्क्ड फॉर, आई डोंट नो इफ यू डिड और नॉट, ये जो है ये डे 21 प्रोजेस्टेरोन एंड 28 डे साइकिल, वो सारा कुछ, वो सारा हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राम भी चलो ठीक है, बिकॉज शी इज मैरिड फॉर 5 इयर्स, और वो सब ठीक है, वो आपने मांग लिया। हस्बैंड की रिपोर्ट, मुझे अच्छा लगा कि यू स्टार्टेड विद हस्बैंड रिपोर्ट इवन बिफोर यू वेंट फॉर द फीमेल इन्वेस्टिगेशंस, उसमें आपने अच्छा सारा कुछ मांग लिया, बस सिर्फ डेट और लैब का नाम और डेट आप मांग लो, या 3 डेज एब्सटिनेंस के बाद हो तो वो और बेहतर इससे कर देता। उसके बाद जब आपने अल्ट्रासाउंड मांगा तो इट वाज आल्सो गुड, ठीक है, आपने सारा कुछ ही तकरीबन मांगा आपने डिलेक्सा के बारे में, फिर आपका वहां बस उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशंस है, फिर आप कहोगे कि माय फर्दर इन्वेस्टिगेशंस डिपेंड ऑन माय अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, या उसके बाद खुद से उसे कॉम्प्लेक्स मैस, अच्छा फॉर एग्जाम्पल ये इन्वेस्टिगेशंस हो गई और मैंने आपको कॉम्प्लेक्स मैस दे दिया है, बायलैटरल 2 into 3 सेंटीमीटर के कॉम्प्लेक्स मैसेज इस पेशेंट के अंदर मैंने दे दिए, तो फिर आप क्या मांगोगे? फिर अब बताओ मुझे। मैं बस CA 125 ही मांग लूंगी। नहीं, अच्छा देखो, अब यही पेशेंट है, सारी रिपोर्ट्स आपके सामने, हस्बैंड सेमेन एनालिसिस भी ठीक है, टीएसएच भी नॉर्मल है, हार्मोनल प्रोफाइल भी नॉर्मल है, सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे मैंने एक साइड पे 2 into 2 सेंटीमीटर का कॉम्प्लेक्सेस दे दिया है, और दूसरी साइड पे मैंने 3 into 4 सेंटीमीटर की कॉम्प्लेक्सेस दे दिया। अब इसके बाद व्हाट फर्दर इन्वेस्टिगेशन यू वुड लाइक टू डू?
बी कॉन्फिडेंट, मैडम एमआरआई कंफ्यूज एमआरआई नहीं होना। करवा सकते हैं, एमआरआई करवा अच्छा, सकते हैं और या फिर ट्यूमर मार्कर करवा लेंगे। कौन से? CA 125 VM ठीक है, और और बीटा SCG ठीक है, और ट्यूमर मार्कर ही। बताएं। हाँ, ट्यूमर मार्कर्स क्या मांगोगे इस पेशेंट में? मैडम अल्फा फीटोप्रोटीन गुड। और बीटा SCG भी हो गया और CA 125 हो गया और सीरम LDH लेवल। एक्सक्यूज मी जी, बताओ। अच्छा देखो, मेरी बात सुनो। आई डोंट नो एमआरआई क्यों करा लिया आपने, और किसी ने सीटी सीटी भी लिख दिया है उसमें। इतनी बड़ी आप लोग देखते रहे हो पेशेंट्स अपने वार्ड्स में? यही पेशेंट 32 ईयर्स की, सब फर्टिलिटी के साथ, बायलैटरल कॉम्प्लेक्स मैसेज क्या, मैंने आपको साइजेस भी दे दिए, उसके साथ आ गई। अब आपने और क्या क्या, आप हर पेशेंट में सीटी लिख देते हो? नहीं, कोई वजह होती है ना किसी में सीटी लिख के देना है, या एमआरआई तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सो मैं आपको मैम बताती हूँ। फिर ये है कि डायग्नोस्टिक तो इस केस में फिर लेप्रोस्कोपी होगी। नहीं, बोंगिया ना मारो ना, अभी तो हम आगे गए नहीं। लेप्रो वगैरह कुछ भी नहीं। अच्छा देखो, मैंने आपको अल्ट्रासाउंड पे कहा बायलैटरल कॉम्प्लेक्स मैसेज, आपको उससे थोड़ी सी और डिटेल मांगनी चाहिए, उसके थोड़े से और फीचर्स मांगने चाहिए। व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय द कॉम्प्लेक्स मैथ? जैसे कि B&M रूल होता है, ऑलवेज गो विद द गाइडलाइंस। इधर उधर की बोंगिया या अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस या इधर उधर की बातें नहीं। इफ यू हैव अ गुड गाइडलाइन रिलेटेड टू दिस थिंग, बस फॉलो द गाइडलाइन देन। आप उसका B और M रूल निकालो, आप उसके एग्जैक्ट फीचर्स मांगो कि साइज ये है, इट्स हम्म, बायलैटरल, उसके सेफ्टी क्या है, उसके अंदर उसका फ्लूइड डेब्री है कि नहीं है, या जो भी कंपोनेंट सॉलिड कंपोनेंट है या नहीं है, या क्या है, वो सारा कुछ। ठीक है, आपने जब इन्वेस्टिगेशंस मांगी थी, तब आपने ये भी नहीं ये आपने एक बहुत ही फनी बात की थी अल्ट्रासाउंड में, डिटेल में अच्छा मांग रहे थे अल्ट्रासाउंड बैंड पे, आपने कहा लुक फॉर एसाइटीज। भाई क्यों फॉर एसाइटीज? डिड यू फाइंड एनी एक्साइटीज इन योर एग्जामिनेशन? एसाइटीज 32 ईयर में कब जाके क्या होगी? सो आई डोंट नो व्हाई। सो इतनी आगे की बातें और इतनी वो नहीं करनी अनहोनी बातें, बहुत अच्छा भला जाते जाते इतना बड़ा ब्लंडर आप बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, सो जब आपने अल्ट्रासाउंड की बात की, तो जब तक आप डिटेल नहीं मांगोगे उसके कैप्सूल कैप्सूल की ब्लड सप्लाई और वो सारा कुछ। अच्छा चलो, उसके बाद मैंने आपको B और M रूल में, बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस के अंदर वी डू फाइंड कॉम्प्लेक्स मैस विच विच इज ऑलमोस्ट लाइक अ मेलिग्नेंट मैस ऑल्सो, क्योंकि वो भी कॉम्प्लेक्स होता है, एक्सेप्ट कि ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस का नाम लिखा गया हो। चलो, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस भी हो तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स, तो हम उसकी फिर भी डिटेल्स मांग लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इसमें आ गया कॉम्प्लेक्स मैथ्स, और हमने अब हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लेक्स मैथ्स, तो उसके अंदर डेफिनेटली फिर अब तो ट्यूमर मार्कर्स मांगोगे ना। लेकिन ट्यूमर जी मार्कर्स मैम। आपने कौन से मांगने हैं? वी नेवर गेट दिस। बेशक ग्रेनुलो, इज इट अ ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर? नो, बिकॉज शी डजंट हैव एनी हाइपर एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट्स इन हर इन एग्जामिनेशन, या ना तो एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट है, ना तो इसके टेस्टोस्टेरोन रिलीजिंग हार्मोन इफेक्ट है। तो व्हाई आर यू गोइंग फॉर सच थिंग्स लाइक ग्रेनुलोसा के अंदर जो जो क्या वो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया भी, मतलब आई डोंट नो हु आस्क्स फॉर इनहिबिन टाइप ट्यूमर मार्कर्स इन अ पेशेंट। आप उसके ट्यूमर मार्कर्स मांगो जो हर जो कॉम्प्लेक्स मैथ्स में मांगे जाते हैं। उसके अंदर आपका CA 125 है, आपका अल्फा फीटोप्रोटीन है, LDH है, CE है, और बीटा HCG है। ये वाले ट्यूमर मार्कर्स हैं, और कोई और एक भी ट्यूमर मार्कर नहीं है। तो फिर क्या आप उसके अंदर वो वाले भी मांगोगे, वो जो CA पता नहीं 19.9 ट्यूमर मार्कर होता है, और CA पता नहीं कौन से ट्यूमर मार्कर होता है? फिर तो पता नहीं किधर से किधर बात चली जाए, फिर तो शायद बाहर के मुल्क में सैंपल उसका भेजना पड़े कि जी फलाना ट्यूमर मार्कर भी होगा तो हम आगे, मतलब इट्स बहुत ही गलत बात है। आपने ट्यूमर मार्कर्स अगर किसी पेशेंट की कॉम्प्लेक्स सिस्ट में मांगने हैं तो वो यही वाले हैं जो मैंने आपको भी बताया। अच्छा, उसके बाद आपने रुक जाना है, आपने कहना माय फर्दर इन्वेस्टिगेशंस विल डिपेंड ऑन माय ट्यूमर मार्कर्स रिपोर्ट। अगर इनमें से कोई एक ट्यूमर मार्कर इतना हाई आता है कि यू आर एक्सपेक्टिंग मेलिग्नेंसी, देन यू गेट द CT स्कैन डन। When do you get CT done and when do you get MRI done in a patient with complex ovarian mass? कौन जवाब देगा इस सवाल का? जी,
सीटी कब कराते हैं और एमआरआई कब मैम कराते हैं? अगर अल्ट्रासाउंड पे ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड पे फीचर्स सिस्ट के बाजाहिर मतलब क्लियर नहीं है तो हम एमआरआई मांग लेंगे ताकि हम सिस्ट के फीचर्स को ज्यादा एलाबोरेट कर सकें। लेकिन ठीक है, अगर गुड। सिस्ट जो है वो एलाबोरेट हो गया तो और हमें मेट्स के लिए देखना है कि फीचर्स ऐसे हैं कि सीए हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो वेरी गुड। हम सीटी स्कैन मांग लें, अदरवाइज देखो, नहीं। जो एमआरआई है ना, एमआरआई हमें देता है सॉफ्ट टिश्यू इमेजेस ज्यादा। वो हमें बताता है कि किसी भी ऑर्गन की वॉल्स के अंदर तक अगर इन्वेजन देखनी है ट्यूमर की। जाहिर है एमआरआई और सीटी हम तब कराएंगे जब हम मेलिग्नेंसी के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड नाउ वी नीड टू नो द स्प्रेड ऑफ द डिजीज, राइट? तो एमआरआई हमें सॉफ्ट टिश्यू इमेजेस ज्यादा अच्छे देगा। तो हमने अगर जैसे सी एंडोमेट्रियम होता है, और सी एंडोमेट्रियम की स्टेजिंग होती है कि किस वॉल तक ये सीए इन्वेड किया हुआ है। जैसे कि अगर एंडोमेट्रियम में अंदर में सीए है तो क्या ये मायोमेट्रियम के अंदर इन्वेड किया है या नहीं, तो उसमें हम एमआरआई कराते हैं। इसी तरह अगर ओवरी है, ओवरी के अंदर अगर हमने फीचर्स देखने हैं सिस्ट के, यानी कि अगर हमें किसी ने स्कैन के ऊपर कॉम्प्लेक्स सिस्ट दी है बट दे आर अनएबल टू टेल अस द डिटेल्स कि उसके सेप्टी की थिकनेस क्या थी, या उसके सिस्ट के अंदर डेब्री था, विच इज अ वेरी रेयर थिंग। अल्ट्रासाउंड नॉर्मली गिव्स अस वेरी गुड फीचर्स ऑफ ovarian cyst. In a patient with complex ovarian cyst, we in more than 99% of cases where we don't need to get an MRI done because ultrasound is so good to give us features of the ovarian cyst. तो लेकिन फिर भी अगर उसे 1% में अल्ट्रासाउंड somehow for any reason is not able or is not sensitive enough to give us exact features, that if it is really a malignant cyst or something, कई दफा डर्मोइड में कंफ्यूजन हो रही होती है, तो एमआरआई प्लेज अ रोल कि वो हमें एग्जैक्ट डायग्नोसिस भी बता देता है if it really is a dermoid or it's the other type of a complex cyst. So उस केस में तो फिर हम एमआरआई कराते हैं, जैसे अभी डॉक्टर ने हमें जवाब दिया कि उस केस में हम एमआरआई टू सी द फीचर्स ऑफ द सिस्ट। सरफेस स्प्रेड ऑफ द डिजीज देखने के लिए सीटी स्कैन कराया जाता है, यानी कि अगर हम मेलिग्नेंसी सस्पेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट में हमें लगता है कि वो इट कैन बी कैंसरस, तो हमने स्टेज ऑफ द डिजीज देखने के लिए कि क्या ये मेलिग्नेंसी ओमेंटम में भी गई हुई है, लिवर पे भी गई हुई है, या उसकी सरफेस ऑफ द ऑर्गन्स देखने के लिए, सरफेस मेट्स ऑफ द डिजीज देखने के लिए सीटी स्कैन कराया जाता है। तो ये सीटी हम तभी एडवाइस करेंगे ना जब पहले तो हमें पता चले कि मैस भी मेलिग्नेंट है या नहीं। वो हमें कैसे सस्पिशन होगी? ट्यूमर मार्कर से। सो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड गेव अस, वी कैलकुलेटेड द बी वर्सेस एम रूल अकॉर्डिंग टू द एमरू गाइडलाइन। If it's going more towards the M side, then we go for the tumor markers. If any one of the tumor marker gives any indication that the mass is more like is mass has got more chances of being malignant, then we go for the CT scan to see the CT. spread of the disease. ठीक है? तो आपने पहले अल्ट्रासाउंड मांगा, एग्जामिनर ने फॉर एग्जाम्पल अगर अल्ट्रासाउंड नहीं दिया उस टाइम पे, या कंप्लीट नहीं दिया, उसने कहा रिपोर्ट इज नॉट अवेलेबल, कि उस तरह की रिपोर्ट नहीं अवेलेबल कि हमें ब्लड सप्लाई कैप्सूल की पता चल रही हो, या हमें सेप्टी का पता चल रहा हो, या वो, तो फिर आप कहोगे कि देन आई रिपीट द अल्ट्रासाउंड बिकॉज माई फर्दर इन्वेस्टिगेशंस विल डिपेंड ऑन द अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। अगर अल्ट्रासाउंड पे एम की जगह बी रूल ज्यादा जा रहा है, तो फिर बी रूल की वजह से फिर हम ट्यूमर मार्कर भी नहीं मांगेंगे। लेकिन अगर आपके फीचर्स एम रूल की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आपकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ट्यूमर मार्कर्स आ जाएंगे जो मैंने अभी आपको बताए वो सारे। अब वो कब किस में क्या मांगने? ट्यूमर मार्कर्स नॉर्मली तो आप हर पेशेंट में हर ट्यूमर मार्कर जो मैंने आपको लिस्ट बताई, यानी कि उसके अंदर CA 1 to 5 है, अल्फा फीटोप्रोटीन है, LDH है, CE है और बीटा HCG है। ठीक है? ये ट्यूमर मार्कर्स हैं। अगर अगर हर आप कहोगे कि एनी मेलिग्नेंसी कैन अकर एट एनी एज ग्रुप, राइट? तो इसलिए मैं सारे ट्यूमर मार्कर्स मांगूंगी। लेकिन फिर भी एट टाइम्स इफ यू वांट टू कैटेगराइज, जैसे I would like to categorize in my patients. In a patient of age less than 20 years, I may not ask for CA 1 to 5. I will only ask for the other tumor markers other than CA 1 to 5. मैं सिर्फ अल्फा फीटोप्रोटीन, LDH, CA, बीटा HCG मांग लूंगी। मैं शायद CA 1 to 5 मैं नहीं कराने चाहूंगी because epithelial cell tumor is so rare in a patient of age less than 20 years.
अगर एक पेशेंट है हु इज गॉट हु इज ऑफ एज मोर देन 60 ईयर्स, तो उसके अंदर हो सकता है कि मैं सिर्फ CA125 कराऊं और बाकी सारे ट्यूमर मार्कर्स ना कराऊं। तो 20 से 60 के बीच में मैं सारे ट्यूमर मार्कर्स कराऊं इंक्लूडिंग CA125 एंड ऑल अदर ट्यूमर मार्कर्स। लेकिन एक पेशेंट हु इज ऑफ लेस देन एज 20 ईयर्स, आई मे नॉट आस्क फॉर CA125, एंड अ पेशेंट who's got age more than 60 ईयर्स, I may not ask for other tumor markers and will get only CA125 done. So ये कैटेगराइजेशन जो है, इट्स नॉट एक्चुअली इन एनी गाइडलाइन अकॉर्डिंग टू द एज। ये मैंने इसलिए आपको कहा बिकॉज एट टाइम्स पेशेंट इज नॉट वेरी अफोर्डिंग टू गेट ऑल द ट्यूमर मार्कर्स डन, तो फिर हम एज के हिसाब से उसकी देख लेते हैं कि प्रेवलेंस उस टाइम पे ट्यूमर मार्कर, बिकॉज एपिथेलियल सेल ट्यूमर यस 30 से 60 के बीच में एनी ट्यूमर कैन 30 नहीं सॉरी 20 से 60 के बीच में एनी ट्यूमर एनी टाइप ऑफ ट्यूमर कैन अकर एक्चुअली। लेकिन उसके अंदर आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज और बिलो 20 ईयर्स ऑफ एज फिर वी कैन कैटेगराइज इट अ बिट। राबिया ने हाथ खड़ा किया जी। मैम बी रूल और एम रूल का कोई कट ऑफ है कि मतलब कितने एम रूल्स आए तो हम उनसे ट्यूमर मार्कर्स एक भी मांगे? एम रूल आए, देखो एम रूल तो अगर एक भी आ जाए, ब्लड सप्लाई ज्यादा आ गई है तो यू नीड टू रूल आउट मेलिग्नेंसी। आपकी सेप्टी है, एक भी अगर आपकी वो वाली जो कैटेगराइजेशन थी भी है उसके अंदर आपके गाइडलाइन के अंदर, तो आपने मेलिग्नेंसी को रूल आउट करना है। ठीक है, जी मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। ठीक है, तो इस तरीके से सो इन्वेस्टिगेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन कॉम्प्लेक्स मैथ्स। बल्कि इससे अगली क्लास भी हम इस कॉम्प्लेक्स मैथ्स को इसलिए कंटिन्यू करेंगे बिकॉज नाउ कंफ्यूजन कम्स व्हेन द differential goes with the complex mass given in ultrasound towards endometriotic cyst, oblique tuberculous mass, oblique abscess, oblique CA, oblique benign mass. So तब जाके और ज्यादा कंफ्यूजन। सो आपने आपको हाउ टू रीच द राइट डायग्नोसिस आफ्टर हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड देन एक एब्सोल्यूट डायग्नोसिस पे आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी आज तो हम एंडोमेट्रियोसिस ही कर रहे हैं, इसकी पूरी मैनेजमेंट कर लेते हैं, फिर अगली क्लास में हम ये कॉम्प्लेक्स मैथ्स का ही डीडी पहले कर लेंगे जी। एक हैंड रेजर्स फिर उसके बाद करते हैं जी। जी मैम। मैम किसी ने लिखा है इनबॉक्स में कि अगर ट्यूमर मार्कर नॉर्मल है और कॉम्प्लेक्स सिस्ट है तो मैम उसमें डोंट हम गो फॉर सीटी, मैनेजमेंट गो फॉर सीट। ठीक है मैम। मैम डोंट इसमें हम डोंट मैंने क्या डोंट सीटी नहीं कराना। अगर ट्यूमर मैम मार्कर्स नॉर्मल है, कॉम्प्लेक्स मैस है, तो सीटी नहीं कराना जी। सीटी नहीं कराना, लेकिन इसमें मैम मैनेजमेंट फिर हम साइज और पेशेंट के सिम्टम्स को लेकर चलेंगे वो तो जाहिर है मैनेजमेंट तो फिर आगे से लेके चलते हैं ना। ठीक है, कि हमें ऑपरेट करना है या हम वो तो वॉच अभी आउट। डॉक्टर हिरा बताएगी हमें। जी मैम ठीक है। ठीक है, चलो गुड। ठीक है हिरा, तो यूं हम करेंगे। सो Yes, और ma'am. कोई क्वेश्चन, फिर हम मैनेजमेंट में आ जाते हैं जी। हैंड रेज है आपका। ठीक है, सो हिरा इन्वेस्टिगेशन सब आपको आई होप के समझ आ गई हैं। सो मैं Yes, इसमें ma'am. आपको ट्यूमर मार्कर्स में CA125 दूंगी, आपका वन बल्कि 75 CA125 है। बाकी सारे ट्यूमर मार्कर्स नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मैंने आपको दे दी हुई है। और नाउ स्टार्ट मैनेजिंग द पेशेंट। Okay, ma'am. After completing my missing investigation, I will counsel my patient that according to history, examination, and investigations, she is having uh, ovarian mass that is most probably that is called endometriosis, and it is benign in nature. And unfortunately it's a recurrent condition and there is not definitive treatment for this condition, and we need intermittent treatment for the suppression of this disease. I will tell my patient and counsel her and explain her that gold standard treatment for this condition in your case would be the laparoscopy. However, open lobotomy can be done. I will tell her pros and cons of each procedure. I will tell her pros and cons of procedure and सेकेंड explain एक सेकेंड ठीक है, preoperative workup एक सेकेंड and एक सेकेंड follow. सॉरी, अच्छा ठीक है। देखो हिरा, बात ये है कि वही बात, एक सबसे पहले तो आपकी पहली स्टेटमेंट, मैंने आपको इन्वेस्टिगेशंस दी लेकिन सारी नहीं दी। I did not tell you about FSH, LH and your hysterosalpingogram. चलो हस्बैंड की रिपोर्ट मैंने कह दिया नॉर्मल है, लेकिन मैंने आपको नहीं दिया। तो आप आगे कैसे चल पड़े मैनेजमेंट को लेके?
अच्छा, उसके बाद वही बात कि चलो जो भी इन्वेस्टिगेशंस हो गई, हाउ कैन यू यूज द टर्म ऑफ एंडोमेट्रियोसिस इन इन योर स्टेटमेंट, बिकॉज वी डोंट नो, इट्स रियली हम तो इवन सर्जरी के बाद भी कहते हैं कि इट कैन बी, हाउएवर अल्टीमेट डायग्नोसिस विल बी मेड आफ्टर हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट। सो दूसरा ये बढ़िया ब्लंडर। तीसरा, वेन एवर यू आर डूइंग काउंसलिंग, एक पेशेंट की जब आप काउंसलिंग कर रहे हो, तो ये पेशेंट की तो खैर फिर भी कोई इतनी लाइफ थ्रेटनिंग चीज नहीं है, या खुदा ना वो नहीं है कि हम कहेंगे मेलिग्नेंसी भी कह लो, इवन अगर कोई मेलिग्नेंट पेशेंट भी है, कोई स्टेज 4 का भी पेशेंट बैठा हुआ है, तो वी डोंट यूज टर्म्स लाइक अनफॉर्चुनेटली और समथिंग विच मेक्स हर फील बैड कि इट इज मी ओनली इन द वर्ल्ड जिसके साथ ये हो गया। सो सो आपको अपनी टर्मिनोलॉजी ना सिर्फ अपने एग्जाम के लिए, बल्कि जब व्हेन यू आर डीलिंग विद द पेशेंट, यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव अबाउट द टर्म्स यू आर यूजिंग इन फ्रंट ऑफ हर। सो आपने बात भी डायरेक्ट और ब्लंट करनी है, उसको एहसास भी दिलाना है कि अब हो क्या गया है, बट एट द सेम टाइम आपने ये वर्ड्स यूज नहीं करने, अनफॉर्चुनेटली या इम्पॉसिबल या एब्सोल्युटली इनक्योरेबल, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, तो आपने इस तरह एकदम से वो नहीं यूज करना। तो ये भी बहुत बड़ा एक तरह से ब्लंडर ही होता है एग्जाम में। सो आपने सबसे पहले व्हेन व्हेन यू स्टार्टेड योर मैनेजमेंट, एग्जाम में ही अपना रिफ्लेक्स बनाओ कि लुक बैक ऑन योर पेपर एंड सी कि आपकी इन्वेस्टिगेशन, अगर आपकी एक यूरिन की इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट नहीं है, तो आपको जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं मिलती है, आप मैनेज कैसे करोगे पेशेंट को? आपकी एचबी भी अगर पूरी नहीं है, तो आप कैसे मैनेज करोगे? आपने इसके अंदर पहले अपनी इन्वेस्टिगेशंस पूरी करनी है, आपने कहना है कि मेरी ये तो एग्जामिनर आपको ऑब्वियसली देगा, नहीं, आपके सामने या सिनेरियो में लिखा होगा वहां टेबल के ऊपर। ठीक है, और फिर उसके बाद आप स्टार्ट करोगे कि ओके ये भी ठीक है, हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राम का भी फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज अवेलेबल, तो फिर वो आपको दे देंगे कि ये है। अगर नहीं अवेलेबल, तो फिर ऑब्वियसली फिर अकॉर्डिंगली आपकी पूरी मैनेजमेंट चेंज होगी, और उसके बाद आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर जब काउंसलिंग, फॉर एग्जांपल मैंने आपको दी, इसमें हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राम नॉर्मल है, एफएसएच इज गुड, पेशेंट के पीरियड रेगुलर है, शी इज 32, पेशेंट की बायलैटरल सिस्ट्स हैं, राइट, छोटी छोटी 2 सेंटीमीटर और 3-4 सेंटीमीटर की दूसरी साइड पे। तो आप लेकिन पेशेंट को एक चीज तंग कर रही है जो कि आपने मेंशन ही नहीं की मैनेजमेंट में, उसने कहा कि मैंने तो देखा उसने कहा कि CA 1 to 5 की नॉर्मल रेंज जो मेरे पास लैब की थी, इट वाज 25, यू हैव गिवन मी 75, और आपने इस चीज को तो लिफ्ट ही नहीं, मतलब पेशेंट इज वेरी एंशियस अबाउट इट, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात होती है, वो नहीं आपने जिक्र, तो आपकी जो स्टार्टिंग मैनेजमेंट है वो बिल्कुल ही ठीक नहीं थी। आपने जब तक हर एस्पेक्ट को कवर, इट डज नॉट मैटर, अगर आप ये सारी चीजें कवर करके गलत भी मैनेज कर रहे हो और पेशेंट का कोई ब्लंडर भी कर रहे हो, या इतना बड़ा ब्लंडर आगे जाके कर रहे हो कि मे बी यू आर नॉट डूइंग सर्जरी एंड शी नीडेड सर्जरी, और मे बी यू आर डूइंग सर्जरी एंड शी डिड नॉट नीड सर्जरी, इतना बड़ा ब्लंडर कर रहे हो, लेकिन आपने ये एस्पेक्ट्स कवर किए हुए हैं और उसके बाद आप उस जगह पे पहुंचे हो, तो यू कैन नॉट फेल। ठीक है, लेकिन अगर आप ये एस्पेक्ट्स कवर किए बगैर जंप कर रहे हो मैनेजमेंट में डायरेक्टली, वेदर डूइंग सर्जरी और नो सर्जरी, यू कैन नॉट पास। प्री रिक्विजिट्स, काउंसलिंग्स, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि आगे जाके अगर आपकी अल्टीमेट मैनेजमेंट गलत भी हो रही है ना, तो वो माइंड नहीं की जाती बात। असल चीज तो सारी ये है कि आप उस मैनेजमेंट तक पहुंचे कैसे हो। और frankly, if you are not missing anything and you're good in your counseling and you are uh, focused in your prerequisites, so you can never manage patient in a wrong way. ठीक है, तो इस वजह से Yes, ma'am. आपकी मुझे नहीं बॉदरेशन कि आप इसकी लिप्रोटमी कर रहे हो या लेप्रोस्कोपी कर रहे हो या आप इसकी सर्जिकल इंटरवेंशन कर रहे हो या कुछ भी नहीं कर रहे, या उसको ऐसे ही घर भेज रहे हो, मुझे मेरे लिए ये चीज अब मैटर ही नहीं कर रही। मेरे लिए तो वो 4 स्टेटमेंट्स ही बिल्कुल अनसेटिस्फैक्टरी थी जो शुरू में आपने दे दी। ठीक है, तो प्लीज Yes. शुरू वाली चीजों को पूरा टाइम दो, वो 4 स्टेटमेंट्स जो है ना, वही तो सारा कुछ डिसाइड कर रही है आपके लिए। अदरवाइज भी असल लाइफ में भी, डीलिंग विद द पेशेंट भी, और एग्जाम में तो बहुत ही ज्यादा। आपने उस चीज को उस तरीके से इम्पोर्टेंस दी नहीं। तो इस पेशेंट में, एज आई एम टेलिंग यू, आई विल गिव यू द इन्वेस्टिगेशंस अगेन। Baseline were all normal. There was no UTI. HB was normal. It was like 11. And hysterosalpingogram is available. Tubal patency is there. There are bilateral cysts on ultrasound, and they have got ground glass appearance. CA 1 to 5 is 75.
सिस्ट का साइज मैं दे चुकी हूँ, एक साइड पे 2 सेंटीमीटर की है, लेफ्ट साइड पे 2 सेंटीमीटर, राइट साइड पे 3 into 4 सेंटीमीटर की है। एंड नाउ टेल मी व्हाट एल्स, व्हाट विल बी डू। जी हीरा, दोबारा मैनेजमेंट करें। Yes, madam. After completing all the missing investigations, uh, serum FSH level, LH level. हो गई ना, मैंने आपको दे दिया सब कुछ। Yes, madam. अब आप मैनेज करो, अब आपकी इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट है, राइट? जी मैंने madam. I बताया will counsel. बायलैटरल ट्यूब्स पेटेंट है, HSG हुआ हुआ है, बायलैटरल ट्यूब्स आर पेटेंट, एंड हस्बैंड रिपोर्ट पहले ही बता दी इज नॉर्मल, एंड baseline is all normal, HB is 11, there is no UTI, urine is normal, अल्ट्रासाउंड पे सिस्ट है 2 सेंटीमीटर की एक साइड पे, दूसरी साइड पे 3 into 4 सेंटीमीटर की, बोथ हैव गॉट ग्राउंड क्लास अपीयरेंस, हाउएवर आपने ट्यूमर मार्कर कराया बिकॉज इट वाज अ कॉम्प्लेक्स cyst, and they come out to be normal except with CA 1 to 5, which is 75. Now, how will you manage? I will counsel my patient regarding the diagnosis that according to history examination and investigations, she is having ovarian mass, two small ovarian masses bilateral that are most probably benign in nature, but however, the final diagnosis will depend upon histopathology report. And रुकना then नहीं I है, will बोलते जाओ। then I will explain my patient that gold standard treatment for this condition is laparoscopy, and I will explain all the pros and cons and of this procedure. Pre procedure workup and post procedure follow up will be explained to my patient. After this, I will admit my patient. I will involve multidisciplinary approach in this case, like senior obstetrician, senior gynecologist, senior anesthetist, and histopathologist. And after admitting my patient, I will complete all the investigation and complete workup of my patient and prepare my patient according to surgical safety checklist. And चलो एक मिनट रुक जाओ, and कोई और बताए? नई एक्सरे वाली गाइडलाइन पढ़ी है एंडोमेट्रियोसिस की आप लोगों ने? मैडम वो मैं अभी पढ़ रही थी। इज देयर एनीवन हु विल से कि मैं सर्जरी नहीं करूंगी इस पेशेंट में? मैम मैरिड फॉर 5 ईयर भी तो है। तो जी मैम, एक्सरे वाली गाइडलाइन पढ़ी है। तो अब क्या कॉन्सेप्ट है? पहले तो ये क्लियर कट कॉन्सेप्ट था कि एनीवन हु इज हैविंग सब फर्टिलिटी विद एंडोमेट्रियोसिस शुड गेट लैप्रोस्कोपिक सर्जरी डन। अब क्या कॉन्सेप्ट है? अब ये कॉन्सेप्ट है कि डोंट नीड सर्जरी इन एवरी पेशेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस विद सब फर्टिलिटी, ठीक है? इट डिपेंड्स। द थिंग इज कि देखो, अगर तो इसकी एचएसजी नहीं है, मैंने आपको क्यों कहा बार बार, मैंने हिरा को बार बार कहा उसका एफएसएच भी नॉर्मल है, उसका पीरियड्स भी ठीक है, शी इज 32। हाँ, एक अगर वो एएमएच भी करा सकती थी, स्पेशली अगर ओवेरियन सर्जरी की तरफ जा रही है, इसके अंदर दोनों चीजें ठीक है। अगर देखो, द थिंग इज कि अगर ट्यूबल पेटेंसी ठीक है तो गाइडलाइन तो अब ये कहती है कि आप डायरेक्टली आईयूआई भी कर सकते हो इवन विद एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, राइट? डोंट गो फॉर द सर्जरी डायरेक्टली, बिकॉज इफ पेशेंट कंसीव्स विद एंडोमेट्रियोसिस तो एंडोमेट्रियोसिस इटसेल्फ ट्रीट हो जाएगा। अगर आप सर्जरी करोगे तो इट्स अ रिकरिंग कंडीशन, उसके बाद ओव्यूलेशन इंडक्शन करके आईयूआई सर्जरी से ओवेरियन रिजर्व और कम होगा, और फिर जब आप ओव्यूलेशन इंडक्शन करोगे और फिर वो करोगे, फिर नहीं कंसीव होगा, फिर सिस्ट बनेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब जो आई विल शेयर द गाइडलाइन विद यू एज वेल, लेकिन उसके अंदर अब ये है कि आप डायरेक्टली आईयूआई पे भी जा सकते हो, एंड यू डोंट नीड टू गो फॉर द सर्जरी डायरेक्टली इन अ पेशेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, स्पेशली ट्यूबल पेटेंसी इज ऑलरेडी गिवन। अगर इस पेशेंट के अंदर एचएसजी ना हुआ होता तो आई वुड हैव गॉन फॉर द लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेकिन उसके अंदर भी उन्होंने कहा है कि जरूरी नहीं है कि आप सिस्ट को निकालने बैठ जाओ, अगर ट्यूब्स ठीक है गो फॉर द आईयूआई। इवन अगर पेशेंट इज देयर विद सिस्ट एंड ट्यूबल पेटेंसी इज नॉट डन, अभी तो मैंने इसके बहुत सारे सिनेरियोज बन सकते हैं इसके अंदर, तो अभी ओवेरियन रिजर्व मैंने आपको कम भी करके देना था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो उसके अंदर पेशेंट का ये भी है कि अगर ट्यूबल पेटेंसी नहीं ठीक और शी हैज गॉट स्मॉल सिस्ट बायलैटरल आल्सो, यू कैन गो डायरेक्टली फॉर आईवीएफ। फिर सिर्फ आईवीएफ में यही कंसर्न होता है। यस, ये बात भी ठीक है कि ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर शुड बी रिमूव्ड कंसिडरिंग द बायोप्सी रिपोर्ट एंड ऑल दैट, लेकिन अगेन इसके मेलिग्नेंट होने का चांस इज 0.1%। सो यू कैन गो डायरेक्टली फॉर द आईवीएफ और आईयूआई आल्सो इन दीज पेशेंट्स। और इसके अंदर सिर्फ आईवीएफ में यही कंसर्न होता है कि एग पिकअप के वक्त कोई एब्सेस या वो ना बन जाए या ये एग पिकअप को डिफिकल्ट ना करें। उस केस में यू कैन थिंक कि हम सिस निकालें या हम डायरेक्ट पहले आईवीएफ की तरफ जाएं और फिर हम वो करें। बिकॉज इसमें फिर आप बार बार वो करके और क्योंकि अगर आप बार बार ओवेरियन सिस्ट निकालोगे, क्योंकि सर्जरी का पर्पस इज नेवर ड्रेनेज, इट्स ऑलवेज रिमूवल ऑफ द सिस्ट वॉल or at least ablation, not even ablation. Preference is the cyst wall removal, second number पे ablation. So तो उसके अंदर डेफिनेटली ओवेरियन रिजर्व फिर कम होना शुरू हो जाता है। और अगर बहुत कोई पेशेंट पेन, अगर इफ देयर इज एंडोमेट्रियोसिस व्हिच कॉजेज वेरी वेरी सिवियर पेन, इसलिए तो मैंने हिरा को हिस्ट्री में बार बार कहा कि सेवेरिटी तो पता करो, पेन की सिम्टम्स का तो पता करो उसको। कई पेशेंट्स को तो स्टूल पैसेज में इतनी पेन हो एक्सेट्रा के फिर उस पेशेंट में सर्जिकल ऑप्शन पहले आ जाएगी, राइट? सो इट डिपेंड्स ऑन द सिम्टम्स। नाउ फर्टिलिटी इटसेल्फ इज नॉट, तो पहले होता था कि फर्टिलिटी इटसेल्फ वाज अ सिम्टम। पहले हर पेशेंट ऑफ सब फर्टिलिटी विद एंडोमेट्रियोसिस के अंदर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी वाज द गोल्ड स्टैंडर्ड, जैसे कि हिरा कह रही थी, लेकिन ये पुराना कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अब वो कहते हैं कि बेशक एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट्स हैं, बेशक बायलैटरल सिस्ट्स हैं, आप जो हो उनको पहले लेके चलो उस तरीके से। ट्यूबे ठीक है तो आप इवन उसको आईयूआई के ट्रायल्स दो विद दिस स्मॉल सिस्ट, बिकॉज इसके अंदर लेस देन 0.1% चांस में नहीं होता। आई हैव नेवर सीन कि कोई एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट मेलिग्नेंट निकल आई हो, लेकिन अगेन 0.1% चांस होता है। तो फिर आप उसको डायरेक्ट आईयूआई के लिए भी ट्राई कर सकते हो एंड देन यू कैन लेटर ऑन थिंक अब क्या करना है। मैडम फिर इसमें सीओसीपीस वगैरह कंटिन्यूअस नहीं देनी, वो वाला क्या देना ट्रायल है? बिल्कुल भी नहीं? देखो, दो तरीके होते हैं एंडोमेट्रियोसिस में, एक मेडिकल कंबाइंड और मैनेजमेंट है, एक सर्जिकल मैनेजमेंट है। मेडिकल मैनेजमेंट तो सब फर्टिलिटी में है ही नहीं ना, क्योंकि अगर आप मेडिकल मैनेजमेंट दोगे तो वो कंसीव कैसे करेगा? कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे रहे हो तो फिर सब फर्टिलिटी तो ना हुई। फिर तो आप जी उसको कॉन्ट्रासेप्शन देने बैठ गए हो, ठीक है? वो तो जी फिर जी। बिल्कुल ही अलग चीज है। कुछ जगहों पे ये कॉन्सेप्ट भी इवन के है कि यू गॉट अ पेशेंट हु हैज गॉट वेरी लो एएमएच, लाइक मे बी 0.8 और 0.6, 0.8 और 1 विच इज ऑन द लोअर साइड, और उसके अंदर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है मे बी 5 सेंटीमीटर और सो। एंड नाउ यू हैव गॉट टू डू, आप क्या करना है? जाहिर है लो एएमएच की वजह से तो आप अगर उसका आईवीएफ ही प्लान कर रहे हो एंड देन देयर इज अ सिस्ट, तो क्या अब आप उसकी सिस्ट निकालोगे तो फिर एएमएच क्या बचेगा? एग्स कहाँ से बनेंगे? उस केस में भी हार्ड एंड फास्ट गाइडलाइन तो नहीं है, बट देर इज अ कॉन्सेप्ट के या डिफरेंट स्टडीज हैं कि उसके अंदर फिर आप पहले ओवेरियन सप्रेशन करोगे ताकि सिस्ट थोड़ी सी खत्म हो, मे बी विद जोलिडेक्स और कंबाइंड पिल्स कंटिन्यूस, ताकि सिस्ट का साइज छोटा हो, एंड देन यू गिव द ओव्यूलेशन इंडक्शन एंड टेक द ओवा एंड फ्रीज एम्ब्रियोज एंड देन ट्रीट द सिस्ट अकॉर्डिंगली लेटर ऑन। बट वो फिर एक और डिफिकल्ट सिनेरियो हो जाता है। और एग्जाम में मैं बताऊं, यू नीड टू गो prepared for the most difficult and the rarest scenarios of endometriosis and subfertility, क्योंकि वहां पे डिस्कशन कहीं पे भी जा सकती है और आपका फुल कमांड जब तक नहीं होगा इस चीज में या आप नहीं मैनेज कर सकते हो। लेकिन पहले बेसिक को अपना ठीक करो। टुडे वाज अ वेरी बेसिक सिनेरियो। इसके अंदर आपकी गाइडलाइन, दो तीन गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ओवेरियन सिस्ट इन यंग पेशेंट्स, यानी कि प्री मेनोपॉजल पेशेंट्स का, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के पेशेंट्स में ओवेरियन सिस्ट वाली गाइडलाइन। उसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस की अपनी गाइडलाइन और एक फर्टिलिटी की गाइडलाइन। ये तीनों गाइडलाइन आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि किसमें कौन सी इन्वेस्टिगेशन मांगनी है और क्यों मांगनी है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद मैनेज कैसे करना है। सो मैनेजमेंट में आपने इस पेशेंट में पहले तो काउंसलिंग की। काउंसलिंग में आप ये कहोगे कि आफ्टर हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशंस, I will counsel my patient that there are bilateral variances on ultrasound which seem to be the cause for her subfertility, as well as her pain, cyclical pain, lower abdomen. However, after the tumor markers and investigations, it comes out to be a benign lesion. And considering CA 1 to 5, it comes out to be typically for the endometriosis. So the diagnosis is going more towards endometriosis. However,
Now, further management depends mainly on the symptoms of the patient, which is subfertility. The pain is settled with analgesia, right? उसकी पेन मैंने आपको इस तरह से नहीं दी कि वो उस तरह से हो। मैं आपको ना वो गाइडलाइन सब फर्टिलिटी की नहीं, मैं आपको ये एंडोमेट्रियोसिस की गाइडलाइन है। सब फर्टिलिटी की तो नाइस वाली है। सो वो सॉरी, ये चैट के ऊपर से क्वेश्चन क्या बता। सो फिर आप endometriosis का you can even refer to the guidelines of endometriosis and say that the patient with subfertility and having tubal patency normal and has not tried IUI before or previously if she has not taken any। हाँ, मैंने इसमें ovulation inductions नहीं दी ताकि उसका टाइम ना वेस्ट हो और ऐसा ना हो कि उसकी endometriosis बढ़ के और ट्यूबों को अफेक्ट करे। वो तो IUI के कुछ साइकिल्स आप जरूर ट्राई कर सकते हो एंड देन यू कैन सी व्हाट टू डू। अगर वो IUI से कंसीव नहीं कर रही है एंड यू आर प्लानिंग IVF देन अगेन ओवेरियन सिस्ट पे डिपेंड करता है कितनी बड़ी है। हाँ, इस सारे दौरान में अगर the cyst size is increasing rapidly, then you can then you can plan the laparoscopic surgery। और फिर सर्जरी के क्या स्टेप्स होंगे वो फिर हम नेक्स्ट टाइम में इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट, एक तो इन्वेस्टिगेशंस वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, और उसके अलावा जो है थोड़ी सी मैनेजमेंट भी, कि हर एंडोमेट्रियोसिस विद फर्टिलिटी में अब डायरेक्टली सर्जरी पे जाने की जरूरत नहीं है। पहले यू नीड टू सिट डाउन विद द पेशेंट, आप उसके सिम्टम्स पे गौर करो कि क्या उसको वाकई सर्जरी की जरूरत है, और फिर उसकी इन्वेस्टिगेशंस के क्या बाकी हर चीज ठीक है उसकी इन्वेस्टिगेशंस में। अगर हर चीज ठीक है एंड देयर आर स्मॉल बायलैटरल एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, यू कैन गो फॉर द ट्रायल ऑफ IUI डायरेक्टली एज वेल नाउ। जी। और अगर ओवेरियन रिजर्व स्पेशली बहुत कम है, यू आर गोइंग फॉर IVF, देन देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग फॉर अनदर ओवेरियन सर्जरी, क्योंकि अगर आप उसकी फिर से ओवेरियन सर्जरी करने बैठ जाओगे और उसके सिस्ट रिमूव करने बैठ जाओगे तो उसका फर्दर ओवेरियन रिजर्व को कम कर दोगे, और फिर जिस काबिल वो थी बेचारी के कुछ ओवा दे के दो चार एम्ब्रियोज ही बन जाते, उस काबिल भी नहीं रहेगी उसके बाद। जी, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये पूरा का पूरा थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा ये ठीक है, और हर चीज की लेटेस्ट चीज जरूर पढ़ के जानी है एग्जाम में। एंडोमेट्रियोसिस इज वन थिंग विच इज वेरी कंट्रोवर्शियल इन इट्स मैनेजमेंट, इट्स कीप्स ऑन चेंजिंग। ये रोज रोज जैसे मेनोपॉज की मैनेजमेंट और मेनोपॉज की बातें रोज रोज चेंज होती हैं, एंडोमेट्रियोसिस की बातें भी रोज रोज अब चेंज होती है। ठीक है। Yes, ma'am. सो और Yes, कोई ma'am. क्वेश्चन है तो पूछ लें फिर। Thank you, madam. आपने हमारा विजन थोड़ा broaden किया है क्योंकि ऐसे ब्रॉडन हुआ। यस, एंड आई थिंक इट इज वेरी एक्सेप्टेबल ऑल्सो, बिकॉज जैसे आपने कहा कि मैम एंडोमेट्रियोसिस इज अ रिकरिंग कंडीशन। जी। मैम ये मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम मतलब ट्यूबल पेटेंसी है तो फिर हमें सर्जरी की जरूरत नहीं, लेकिन मैम इसमें तो HSG चले इसने करवाया हुआ था, लेकिन वैसे हम करवाते तो नहीं है। अगर अगर रहा एंडोमेट्रियोसिस हो का फॉर हमें डाउट हो तो एग्जाम्पल, HSG तो हम करवा नहीं बिल्कुल ठीक है, सकते, फिर फिर HSG ट्यूबल नहीं पेटेंसी कराएंगे, के लिए भी तो HSG लैप एंड डाई टेस्ट कराना। लैप एंड डाई लेप्रोस्कोपी। तो फिर होगा ना फिर मैम? लैप एंड डाई ना बोला करो यार, लैप डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी बोला जी करो। मैम। डोंट यूज योर ओन मेड टर्म्स, नेवर। एग्जाम में तो आप कहते हो कि मेडिकल टर्म्स भी नहीं थी, फिर अपनी टर्म्स यूज करोगे तो बहुत इरिटेशन होती है। देयर इज नो टर्म कॉल्ड लैप एंड, व्हाट इज लैप एंड डाई? नथिंग। आप डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी बोलो। सो यस, इस तरह के पेशेंट में जिसमें HSG फॉर एग्जांपल नहीं हुआ हुआ, तो उसके अंदर आप डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करोगे, उसके अंदर फिर आप उसकी पूरी स्टेजिंग करोगे एंडोमेट्रियोसिस की, और ट्यूब्स को देखोगे। अगर ट्यूब्स आर फाइन एंड देयर आर बायलैटरल cysts, up there is a controversy that because patient is undergoing laparoscopy, whether you remove the cysts or not। अगर देखा जाए तो if cysts are very very small and tubes are fine and the rest of the anatomy is all right, then you can just go directly for the IUI also। But if she has got good ovarian reserve, preoperatively अगर उसका ovarian reserve अच्छा है and you are checking the tubes and there are cysts maybe more than 3 centimeter, तो there is no harm कि आप उसकी cystectomy कर दो, और उसकी ट्यूब्स को अगर फर्दर स्ट्रेटन अप करना है या जो भी करके फिर देन यू गो फॉर IUI और whatever, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बट if bilateral cysts are less than 3 centimeters and tubes are absolutely fine and you are doing the diagnostic laparoscopy, then you may not even need to remove the cyst, you can go directly for the IUI also, क्योंकि आप उसका जितना ओवेरियन हैंडलिंग करोगे उसके ओवेरियन रिजर्व कम होगा बाद में। थैंक यू मैम। वेलकम। AMH मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? अगर पेशेंट इज 32 years of age, she has got regular periods, she never had any previous ovarian surgery done and has got normal FSH, then you may not need to get the AMH done if you're not doing any or planning any ovarian surgery। ठीक है, आई होप कि मेरी ये स्टेटमेंट समझ में आई हो। अगर यही पेशेंट 35 से ज्यादा होती, या इस पेशेंट में 32 years का होते हुए पहले कोई ओवेरियन सर्जरी हुई होती, या फिर
32 ईयर्स की है और मैं अब इसकी ओवेरियन सर्जरी ही प्लान कर रही हूँ, तो फिर आप AMH करा सकते हो. But if she is 32, she has got regular periods, she has got no clinical feature of any premature ovarian failure. She never had any surgery on her ovary done before. तो फिर आपको AMH कराने, और FSH सॉरी भी ठीक है, तो फिर नहीं जरूरत कराने की. जी. एंडोमेट्रियोसिस इटसेल्फ AMH पे कितना अफेक्ट करता है? अब यस, लेकिन अगेन मैंने कहा कि शी इज 32, शी हैज गॉट गुड FSH एटसेट्रा एटसेट्रा, तो फिर आप, और एंड यू आर नॉट प्लानिंग एनी सर्जरी, आप उसको 2 या 3 साइकिल्स या IUI के देना चाह रहे हो उससे पहले, अगर बाकी सब कुछ ठीक है तो AMH ना भी कराओ तो ठीक है, लेकिन अगर आप सर्जरी प्लान कर रहे हो या पहले कोई सर्जरी हुई हुई है एटसेट्रा एटसेट्रा, फिर करा लो, या वो 35 से ऊपर है तो करा लो. थैंक यू मैम. वेलकम. ठीक है, तो अब ये गाइडलाइन जो एंडोमेट्रियोसिस वाली है वो मैं आपको भेजती भी हूँ, तो वो भी आप सारे देख लो, सो वो भी पढ़ लो, सो यू शुड नो कि एग्जैक्टली कि किस तरीके से, और इसको ब्रॉड विजन करके, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस का पेशेंट इज वेरी वेरी ट्रिकी. उसमें आपकी वजह से उसका ओवेरियन रिजर्व खत्म नहीं होना चाहिए. ये पेशेंट्स वो होते हैं कि दे आर ओनली 30-32, जिनके अभी 20-20 साल मेनोपॉज को पड़े होते हैं, विच मीन्स के 20-20 साल है उनके पास रिकरेंस ऑफ द डिजीज को फेस करने के. तो यस, इसके अंदर फैमिली कंप्लीट पहले करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और उसके बाद ताकि हमारी मैनेजमेंट आसान हो. इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट की तो एक अलग ही कहानी है, वो अलग चीज है. लेकिन फर्टिलिटी को लेकर इट इज वेरी वेरी ट्रिकी, बिकॉज आप रिकरिंग सर्जरीज करोगे तो ओवेरियन रिजर्व खत्म होगा, एडिशंस और बनेंगी, ट्यूब इफेक्ट होंगी, और अगर नहीं करोगे तो फिर हाउ इज शी गोइंग टू कंसीव, कंसीव आपने जल्दी कराना है. सो ये सारी चीजें इतनी कंट्रोवर्शियल है. सो एवरी डे द ट्रीटमेंट इज चेंजिंग ऑल्सो. लेकिन ये है कि बिल्कुल डायरेक्ट पहले होता था कि सब फर्टिलिटी विद एंडोमेट्रियोसिस यू हैव टू गो फॉर द सर्जरी, ट्यूबल पेटेंसी एंड सिस्टेक्टमी, बट नाउ इट इज नॉट लाइक दैट. यस, ट्यूबल पेटेंसी इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बिफोर यू गो फॉर एनी ART, but whether you go for the variant cyst removal or not, this needs to be discussed and seen in detail in the patient. ठीक है, तो ये सारा कुछ है. मैम सो की इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हमारा लेकिन भी आपने यही ना ये टॉपिक कंटिन्यू होगा. गाइडलाइन है. में जो है मतलब दोनों बातें लिखी हुई हैं कंट्रोवर्शियल, यस. जैसे आपने कहा कि हाँ. जो पेशेंट फर्टिलिटी के साथ है और आप उसकी सर्जरी करोगे तो ओवेरियन रिजर्व कम हो जाएगा, नहीं करोगे तो उसके पेरीट्यूबल जो एडिशंस हैं उसको एक्टोपिक का रिस्क भी दे सकते हैं, अगर आप उसको नेचुरली IUI के लिए लेकिन भेजते मैंने हैं. आपको बताया कि या किसने फिर क्या करना है. एज, प्रीवियस सर्जरी, AMH, FSH, क्लिनिकल फीचर्स, एंड देन यू डिसाइड फॉर द सर्जरी. ठीक है. तो मैम उसी हिसाब से इस पेशेंट में मतलब ऐसा लगा कि 5 ईयर की उसकी फर्टिलिटी है, 32 ईयर्स की एज हो गई है और बाकी सारे इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल हैं, तो इस वजह से मेरे माइंड में सबसे पहले लेप्रोस्कोपिकली ही आ रहा था, इस वजह से बट द फिर. थिंग इज मैंने आपको HSG नॉर्मल दे दिया, राइट? जी मैम. HSG में ट्यूबें नॉर्मल आ गई हैं, 2 सिस्ट हैं, तो आई थिंक आप उसको IUI के 3 ट्रायल्स दे सकते हो, एंड देन यू कैन गो अहेड विद द प्रोसीड फर्दर कि अब क्या करना है, और साथ में आप ओवरीज का. हाँ, अगर जैसे कि आपने कहा कि अगर डायरेक्ट में तो वो भी जस्टिफाइबल है. इट वाज, आपने अच्छी जस्टिफिकेशन दी कि बिकॉज शी इज ऑलरेडी मैरिड फॉर 5 इयर्स. 5 साल तो हो गए ना, बिकॉज अगर ट्यूब्स ठीक थी तो शी कुड हैव कंसीव बाय नाउ. तो अब नहीं किया तो जी मैं उसकी एक दफा लेप्रो, बिकॉज हो सकता है कि पेरीट्यूबल एडिशंस ऐसी हों कि ट्यूबें उसकी स्ट्रेटेंड अप ना हो, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो मैं उसकी लेप्रोस्कोपी करके एंड देन आई विल सी के ओवेरियन सिस्ट का भी क्या करना है, बिकॉज अगर शी इज गोइंग फॉर ART और लेटर ऑन IVF पे अगर उसने एंड अप होना है, तो फिर मैं उसका सिस्टेक्टमी करके, तो उसको ताकि एक पिकअप आसान हो, बिकॉज ओवेरियन रिजर्व इसका पहले ही ठीक है, तो देर इज नो हार्म कि मैं इसकी सिस्टेक्टमी करके एंड देन आई कैन प्लान. सो दिस इज ऑल्सो गुड जस्टिफिकेशन. ठीक है मैम, थैंक यू मैम. लेकिन उसको फिर बोलो जस्टिफाई करते हुए, डायरेक्ट ना ऐसे बोलना शुरू करो. ठीक है. जी जी मैम, थैंक यू. वेलकम. चलो इंशाल्लाह फिर अब नेक्स्ट संडे को मुलाकात होती है, उसमें थोड़ा सा इसी को कंटिन्यू कर लेंगे, थोड़ा सा मेडिकल ट्रीटमेंट की भी बात कर लेंगे जो सब फर्टिलिटी के बगैर वाले पेशेंट है, बिकॉज अगर एंडोमेट्रियोसिस हो ही रहा है. और उसके अलावा जो है थोड़ा सा इसका DD विद द कॉम्प्लेक्स मास एंड ट्यूबरकुलोसिस और वो चीजें भी हम कर लेंगे. ठीक है. चलो. ओके. ठीक है मैम. जज़ाकल्लाह. अल्लाह हाफिज. That is